ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਅਹਿਮ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨ। ਸਰ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਈਟ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਊ ਡਸ ਇਟ ਇੰਪੈਕਟ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ? ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਮਹਾਉ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਵਾਲਾ, ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕੰਮ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਹਿਮ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਤੇ ਵੇਖੋ, ਸੀਐਮ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਸਟਾਰ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਭ ਤੋਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਬੈਚਲਰ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਹਿਮ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਫॉर ਹਿਸ ਫਿਊਚਰ ਲਾਈਫ, ਫॉर ਹਿਸ ਪਰਸਨਲ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਕਸ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਿਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੋਲ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਊਗਾ ਸਰ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਬਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਫੋਕਸ, ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਥਿੰਕ ਟੂ ਮਚ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਸਟ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀਪਸ ਔਨ ਰਨਿੰਗ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਅਗੇਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ 'ਚ ਚੈਲੰਜਸ ਆਏ, ਜੋ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆਏਗਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਰਾਈਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਲੋਕੀ ਸਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਠਾਣੇ ਆ, ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਕੀ ਲਾਇਲਟੀਜ਼ ਤੇ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਆਈਡੀਅਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲਾਇਲਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੁਵਰਡਸ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਟੁਵਰਡਸ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ ਜੀ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇ ਹੈਵ देयर ਪਰਸਨਲ ਲਾਇਲਟੀਜ਼ ਟੁਵਰਡ ਸਰਟਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਫਸਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਟੀਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਚੇਂਜਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜਸ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟਸ ਤੇ ਇਨਸਾਈਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਚੇਂਜਸ ਐਟ ਦੀ ਟੌਪ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 'ਚ ਫਰਕ ਤੇ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਪਫੁਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਆਈਡੀਅਲੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਕੈਲਟਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਹੋਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰਵਾਉਣ, ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ। ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਦੇਖੋ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਦੀ ਰਾਈਟ ਵਰਡ ਜੀ। ਚੇਂਜਸ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਂਗ ਰਾਈਟ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਬੀ देयर ਬਿਗੇਸਟ ਚੈਲੰਜ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਪਫੁਲੀ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਦੇਖੋ ਅਗੇਨ ਸਿਰਫ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਲਈ ਮਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੇਲਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜੇ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਓ। बिल्कुल। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ बनती नहीं। सर, नुपुर शर्मा की चर्चा हो रही थी पूरे देश में और उनको एक और खिलाफत हुई, खिलाफत तो चल रही थी काफ़ी टाइम से, एक धमकी मिली कि उनका सर कलम करके जो भी करेगा सर कलम उसको इनाम दिया जाएगा, इनाम में घर दे दिया जाएगा। देखो सबसे बुरी बात यह है कि एक दरगाह के जो क्लरिक हैं, जो वहाँ के इमाम हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है जी। उनकी अरेस्ट भी हो गई है। और देखिए जब आप रिलीजन के अंदर इस तरह की बेगोटरी आ जाएगी, इस तरह का जो आप कहते हैं कि जब रिलीजन के अंदर इतनी कट्टरपंथी आ जाएगी कि आप दूसरों का सिर कलम करने को तैयार है, और जो पहले उदयपुर में भी हुआ, मेरे को लगता है ये लेसन है सारी कम्युनिटीज के लिए, सिर्फ नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी एक इस वक्त ये चेतावनी का टाइम है। उनको भी देखना चाहिए कि आज उनकी कम्युनिटी को लोग कैसे देखेंगे, उनके जो रिलीजियस लीडर है वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरी कम्युनिटीज को भी देखना पड़ेगा, और स्पेशली हमें इंडिया में जहां पे हमारे यहाँ पे जो एक आपसी भाईचारा था उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा है, राइट। हमें आज इसको बिल्कुल अनअपोलोजेटिकली फेस करना पड़ेगा, स्पेड को स्पेड बोलना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा जो गलत है वो गलत है, और हमें ये मानना पड़ेगा कि आज इस्लाम में काफी हद तक कट्टरपंथीता आ चुकी हुई है जी। हमारे लोगों के, हमारे यहाँ पे भी मुस्लिम समुदाय पे तालिबानी माइंडसेट बनता जा रहा है, और इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हैं मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स जी। उनके ऊपर, उनके एक्शंस के ऊपर गवर्नमेंट को नजर रखनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स हम किसी सबको रिलीजन प्रैक्टिस करने का इक्वल हक है, पर जब इस तरह से रूढ़िवादिता बढ़ती है, मैं कल भी ये बात बोल रहा था, उसका सबसे बड़ा नुकसान खुद मुस्लिम भाइयों को हो रहा है, मुस्लिम बहनों को हो रहा है। जब आप समय के साथ अपने आप को नहीं बदलोगे, अपना टेम्परामेंट साइंटिफिक और मॉडर्न नहीं रखोगे, तो आप देश में जो प्रोग्रेस हो रही है उससे कट जाओगे। बिल्कुल। आप अपने आप को अपने आसपास की कम्युनिटी से काट लोगे, आप आइसोलेटेड अपने आप फील करोगे। उसका क्या रिजल्ट होएगा, ये जो कट्टरपंथीता है और बढ़ेगी। जब आप बाकी सबसे कट गए, आप नए आइडियाज, नए विचारों से अपने आप को काट लिया, तो मेरे को लगता है कि आज एक मॉडर्न इस्लाम की जरूरत है। मॉडर्न इस्लाम जो टाइम के साथ चले, जैसे क्रिश्चियनिटी ने एक टाइम पे अपने आप को चेंज किया, जैसे हिंदू धर्म में हर वक्त क्वेश्चनिंग अलाउड है, ऐसे ही मेरे को लगता है कि आज जो इस्लाम के स्कॉलर्स हैं उनको इसकी इंटरप्रिटेशन ये लोगों को देनी चाहिए, जो ट्रू इंटरप्रिटेशन होगी कि हमें कैसे अपने आसपास, आज का वर्ल्ड बड़ा अलग वर्ल्ड है, 1400 साल पहले और आज के समय में बहुत फर्क है जी। तो आज के जो भी प्रोग्रेसिव मुस्लिम हैं, जो मुस्लिम लीडर्स हैं, उनको खुद सबसे पहले इस तरह की विचारधारा को अनकंडीशनली उसका तिरस्कार करना चाहिए। देखो जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम कम्युनिटी है, सबसे पहले तो उनको ही इसकी आलोचना करनी चाहिए अनकंडीशनली। ये नहीं बोलना चाहिए कि इसके कारण ये हो रहा है। जब आप इस तरह की इंटेलेक्चुअल कवर फायर देते हो, आप उस चीज को जस्टिफाई कर देते हो अनकंडीशनली। इस चीज को पूरी कम्युनिटी को, पूरे हमारे सिस्टम को, चाहे वो कोई भी सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल सोसाइटी हो, चाहे वो हमारी जुडिशियल सोसाइटी हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, सबको इसकी अनकंडीशनली इसकी बहिष्कार करना चाहिए और इसकी आलोचना करनी चाहिए। जब हम ये करेंगे तब अपने आप बाकी लोग, अगर हम ये बोलेंगे कि ये तो माहौल ऐसा होता जा रहा है, कुछ लोग हैं शायद जो वो बहके हुए हैं, ये किसी एक बंदे का माइंडसेट है, ये बोल के हमें प्रॉब्लम से बचना नहीं है। क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की नहीं है, और यहाँ जिसको धमकी मिली है सिर्फ उसकी नहीं है, ये प्रॉब्लम इस वक्त पूरे देश की है। और इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि हम अपने मुस्लिम ब्रदरहुड को, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको नेशनल ग्रोथ में इंटीग्रेट करें, उनको सिमिलर पॉलिसीज के अंदर लेके आए, राइट, और उनको भी जो मॉडर्न ग्रोथ हो रही है, जो नई वैल्यू सिस्टम है, उसके साथ उसको जोड़ा जाए, तभी हम इस प्रॉब्लम को अपने देश से निकाल सकते हैं।
बिल्कुल, और लीडर्स को भी सोचना पड़ेगा कि जो अपने निजी फायदे हैं, छोटे छोटे फायदे हैं, उनके लिए वो सोसाइटी को खतरे में ना डाले। बिल्कुल, देखो आप जब मिनॉरिटी अपीजमेंट की बात करते हो, कोई भी बंदा जब कोई ऐसे किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स का जो बहुत ही अग्रेसिव रूप है वो जब शो करता है, राइट, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या नेता अपने वोट बैंक के लिए मिनॉरिटी अपीजमेंट में या किसी भी धर्म की अपीजमेंट में लगते हैं, उससे क्या होता है कि आप जस्टिफाई कर देते हो, उससे आप दो सोसाइटीज के बीच में डिवाइड पैदा करते हो। और हमें लगता होगा कि वो तो इलेक्शन तो वो जीत नहीं रहे, पर वो उनके लिए काइंड ऑफ एक बिजनेस बन जाता है। वोट कटर्स, अब काफी, मैं अब नाम क्या लूं, एक काफी मुस्लिम नेता हैं, पूरे देश में फेमस हैं, उन पे ये इल्जाम लगता है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी को पोलराइज करते हैं ताकि दूसरी पार्टी को फायदा हो जी। तो अल्टीमेटली अगर हमें अपने देश का फायदा सोचना है तो सबको इकट्ठे चलना पड़ेगा, सबको एक लेवल पे आना पड़ेगा, सबको एक दूसरे को इनफ रिस्पेक्ट और स्पेस देनी पड़ेगी। अगर मैं ये बोलूंगा कि सिर्फ मेरा धर्म ही एक सच्चा धर्म है और बाकी सारे धर्म गलत हैं, तो इससे फसाद होना ही होना है जी। और इसमें कॉमन जनता को यह समझने की जरूरत है कि कुछ रिलीजियस लीडर के फायदे हैं जी। जब वो आपको ये बताते हैं कि भाई आप ही सिर्फ सही हो, बाकी गलत हैं, और दूसरा आप खतरे में हो जी, तो वो उनके दिए और वो उनके लिए एक काइंड ऑफ आप एक रिसोर्स बन जाते हो, आप उनके लिए एक पैसे की खान बन जाते हो। तो वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को सही रास्ते पे डालो, उनको मॉडर्न एजुकेशन दो, अपने लिए जो भी मॉडर्न साइंस कहती है उस तरह के आप हेल्थ सिस्टम्स पे चलो जी, राइट। आप अपने रिलीजन को अपने दिल में रखो जी, राइट। उसको अपनी अपनी स्लीव्स पे मत रखो, डोंट पुट इट ऑन योर स्लीव्स, रिलीजन हैज टू बी इन योर हार्ट जी। आप रिलीजन के नाम पे दूसरों को अपने से कम नहीं समझ सकते। यही हमारे भारत की सभ्यता रही है कई हजार सालों की, और यही हमारा संविधान कहता है। बिल्कुल सर, और ये बात हमें बार बार कहनी ही पड़ेगी ताकि लोगों के दिमाग में और दिल में बैठ जाए। एब्सोल्युटली। और इसके साथ ही सर, नुपुर शर्मा के खिलाफ लोग थे, उसके हक में भी कई लोग आए, कई ब्यूरोक्रेट्स, कई आर्मी ऑफिसर्स जो रिटायर्ड हैं या रिटायर्ड जज भी हैं, तो वो भी उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को और उन्होंने बताया कि हम नुपुर शर्मा के साथ हैं। अमन, मेरे को लगता है कि इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा रिफ्रेज करते हैं जी। उन्होंने क्वेश्चन किया है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को जी। उन्होंने उसके अंदर कुछ बेसिक चीजों को क्वेश्चन किया है कि कैसे, जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहाँ पे ब्लास्फेमी लॉज हमारे जैसे देश में, एक मॉडर्न कंट्री में होने ही नहीं चाहिए, जो काफी मुस्लिम कंट्रीज में ब्लास्फेमी लॉज हैं। आप एक इंसान को जो कैसे आप ये कह सकते हैं कि वो किसी के कत्ल के लिए जिम्मेदार है, जबकि उसके बयान को सपोर्ट करने के कारण किसी का गला काट दिया गया जी। ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी सभ्यता के अगेंस्ट है। हमारे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नुपुर शर्मा ने अगर एक चीज बोली है, वो गलत हो सकती है या वो डिसरिस्पेक्टफुल हो सकती है, बट वो कभी भी उसकी उस स्टेटमेंट से जब आप ये जस्टिफाई कर देते हैं कि उसी के कारण पूरे देश में तोड़फोड़ हुई और कत्ल हुए, आप काइंड ऑफ उन लोगों को जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, जिन्होंने कत्ल कर दिया, उनको कवर फायर दे रहे हैं। आप इनडायरेक्टली उनको एक रीजन दे रहे हो कि जिम्मेदार ये नहीं है जी। आप एक्सोनरेट कर रहे हो उनको उनके क्राइम से जी। तो मेरे को लगता है इस चीज पे अपोज किया गया है, जो काफी हद तक जस्टिफाइड भी है। आप अगर मैं लेट सपोज बोलता हूं कि भाई मैं आपकी विचारधारा से सहमत नहीं हूं जी, या मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान को मानता ही नहीं, ये सारी चीजें बकवास हैं, अगर कोई बंदा ये बोलता है, क्या उसके कारण हमारे देश में तोड़फोड़ हो जानी चाहिए? बिल्कुल। क्या उसके कारण किसी का कत्ल कर देना चाहिए? ये क्वेश्चन है जो हमने अपने आप से पूछने हैं कि हम किस तरह की सोसाइटी बनना चाहते हैं। सर, एक ऐसा ही सिमिलर केस आया है, एक मूवी है काली, उसके पोस्टर की वजह से मूवी डायरेक्टर को धमकियां मिली कि आपका भी सर काट दिया जाएगा। देखो, उसमें धमकी नहीं मिली है, उसमें ये बोला गया कि क्या हम भी आपका सर कलम करें। उन्होंने इस चीज से ही रिलेट किया है। अब देखिए, जब एक एग्जांपल गलत सेट होता है तो उससे रेसिप्रोकेशन क्या आता है। मेरे को ये लगता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू सोसाइटी के लोगों को भी सिर्फ और सिर्फ अपनी कंप्लेन लॉन्च करनी चाहिए। देयर इज नो नीड फॉर वायलेंस। आप किसी भी लेवल पे वर्बली थ्रू प्रॉपर चैनल्स यू कैन मेक योर कंप्लेंट्स कि दिस इज हर्टिंग आवर सेंटिमेंट्स, बट इट डज नॉट जस्टिफाई वायलेंस एट एनी लाइफ। और मेरे को ये लगता है कि यही हमारे हमारे जो ट्रेडिशंस है, इंडिक ट्रेडिशंस जिसकी मैं बात करता हूँ, ये उसी की उदारता है जी। कि इसके कारण कभी दंगे नहीं होंगे, इसके कारण किसी का गला नहीं काटा जाएगा। बट अगर आप ऑफेंडेड फील कर रहे हो, ये कहना कि मैं इसके कारण ऑफेंडेड फील कर रहा हूं, ये आपकी चॉइस है, ये आप कह सकते हो, ये आपका हक है। और आप
दूसरे के क्या मंतव्य थे ये करने के, जी आप उसको भी क्वेश्चन करिए। क्या सिर्फ फायदा लेना है कि भाई मैं एक काली माता काली माता की पिक्चर को अगर इस तरह से मैं आपत्तिजनक तरीके से दिखाऊंगी जो डायरेक्टर हैं, तो शायद मेरी मूवी फेमस हो जाएगी। जी क्या इसका मंतव्य क्या इससे भी ज्यादा है कि किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना? जी ये सारी चीजें फिर कोर्ट को डिसाइड करनी है और गवर्नमेंट्स को डिसाइड करनी है जी कि हम क्या इतने लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना पसंद करेंगे क्या नहीं करेंगे। जी। बट इसके कारण वायलेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, दैट विल नॉट बी जस्टिफाइड। और अगर कोई भी मेजॉरिटी कम्युनिटी से भी इसके कारण वायलेंस करता है या पथराव करता है तो वो बड़ा ही गलत मैसेज जाएगा, वो हमारी सोसाइटी की डिग्रेडेशन दिखाएगा। मैं हमेशा इसीलिए कहता हूं कि ये जो आपस में बंटवारा, डिवाइड एंड रूल, ये सारी पॉलिसीज हमारे देश में अंग्रेज लेके आए। जी राइट। और हमें, और अगर मैं पुराने टाइम की बात करूं, अगर कुछ रिलीजन्स में पहले कट्टरता थी, आज के जमाने में उसकी जगह नहीं है। आज ह्यूमनिज्म सबसे ऊपर है। तो और हमारा इंडिक कल्चर तो कई हजारों सालों से सबके अंदर ही आदर और भगवान ढूंढता है। जी। तो अगर कोई नास्तिक है, कोई गलत भी बोलता है, तो भगवान तो उसके अंदर भी है। बिल्कुल। तो यही परंपरा अब हमें वापस अपने इंडिया के अंदर लेके आनी है। बिल्कुल सर, धर्म कोई भी हो, किसी भी धर्म का निरादर ना हो, और किसी भी धर्म का अगर निरादर भी होता है तो उसके लिए लीगल प्रोसेस में जाया जाए। किसी को दंगा करने का या किसी को कत्ल करने का लाइसेंस नहीं। अगर कोई बंदा धर्म को नहीं मानता तो क्या उसका निरादर है? बिल्कुल। ऐसे हर धर्म को कुछ लोग मानते हैं और ज्यादातर लोग नहीं मानते हैं, तो क्या वो निरादर है? वो निरादर नहीं है। अगर कोई भगवान को नहीं मानता है तो क्या वो भगवान का निरादर है? वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जी। उसके कारण हर चीज को आप लीगल में भी नहीं लेके जा सकते। जी। राइट। अगर उसके कारण सोसाइटी पे नेगेटिव इंपैक्ट आता है या किसी की साइकी पे नेगेटिव इंपैक्ट आता है, तो आप लीगल प्रोसेस में जाइए। दंगे तो बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए। बट मेरा पर्पस ये है कि जो हमारी इंडिक जो वैल्यूज रही हैं, हमने हमेशा क्वेश्चन किया जी। भगवान के होने को भी और ना होने को भी क्वेश्चन किया। बिल्कुल। तो वो क्वेश्चनिंग चलती रहनी चाहिए। हालांकि ये बिल्कुल अलग है। जी। अगर कोई ये मानता है कि अगर मैं काली माता का पोस्टर, मैं उसमें अगर मैं उनको सिगरेट पीते हुए दिखा रहा हूं उनके पोस्टर को, काली माता तो वो भी नहीं है जी। वो भी कोई एक्ट्रेस है जी। है ना। वो अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो दे। जी। राइट। और अगर उसके कारण कोई हर्ट फील करता है तो वो उस पर ऑब्जेक्शन भी करे। जी। और प्रॉपर हम हमारी सोसाइटी के जो लॉज हैं, रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग उस पर चले। कोविड की दोबारा लहर आई है सर, चाइना में कई जगह लॉकडाउन है, मिलियंस लोग फंसे हुए हैं। हाँ देखो, कुछ शहरों में दोबारा से कोविड के बढ़ने की आशंका है और बड़े स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं। चाइना की नो कोविड पॉलिसी रही है, विच इज वेरी स्ट्रेंज। जी। कि नो, देखो एक बार वायरस जब आ गया उसको रोकना इम्पॉसिबल होता है। वायरस काइंड ऑफ अमर होता है, वो अपनी शेप चेंज करता रहेगा, एक जगह से दूसरी बॉडी में जाता रहेगा, पर वायरस ने अब रहना है। धीरे धीरे कोविड विल बी, हमने तो चलो इस सिचुएशन से निकले, हमारे लिए कोविड हमेशा हमारे साइकी पे एक इम्पैक्ट रखेगा। पर जो नई जनरेशन आएंगी जिन्होंने कोविड के बारे में इस तरह से नहीं सुना होगा, वो उसको नॉर्मल फ्लू की तरह लेंगी। जी। और अब चाइना ने अपने देश के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। क्योंकि इसको पहले वुहान वायरस भी कहा जाता था। अब पता नहीं चाइना इसके बारे में कुछ और जानता हो जो हम ना जानते हो, जिसके कारण वो ऐसी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज रख रहे हो। जी। राइट। तो ये चाइना के अंदर अगर इस तरह की स्ट्रिक्ट इम्प्लीकेशंस आती हैं, मेरे को ये लगता है, हालांकि चाइना ने कभी ह्यूमन राइट्स की परवाह नहीं की, ये काफी लोगों के ह्यूमन राइट्स के वायलेशन है। अब जब आप वायरस को रोक ही नहीं सकते, आप लोगों को अपना काम करने से रोकते हैं, उनको खाने पीने से रोकते हैं, और जब पूरी दुनिया हैज डिसाइडेड दैट इट इज बेटर टू लिव अलोंग विद कोविड और लोगों को काम करने दिए जाए, वहां की लोगों की साइकी पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। बट चाइना की पॉलिसीज वन मैन शो होता है, वन पार्टी शो होता है, वही करते हैं जो उनको ठीक लगता है, उसका साइंटिफिक रियलिटी से या किसी के अधिकारों से कुछ वो लेना देना रखते नहीं है। जी सर, एक खबर रशिया से आ रही है। रशिया कोर्ट ने ऑर्डर किया है, सीपीसी को बंद किया है, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट पाइपलाइन है। ऑयल सप्लाईज बंद होंगी 30 दिन के लिए। देखो, बेसिकली ये एक टेक्निकल ऑर्डर दिया गया है, और क्योंकि वहां पे स्पिल के ऊपर कैसे हैंडल करना सिचुएशन को, लास्ट ईयर भी वहां पे ऑयल स्पिल हुआ था, तो उसकी प्रोटोकॉल्स में कुछ कमी थी, तो उसके कारण हुआ है। पर मेरे को लगता है कि क्योंकि सीपीसी दुनिया का सबसे बड़ा पाइपलाइन क्लस्टर है, तो वहां से रफली दुनिया की 1% ग्लोबल सप्लाई, अब 1% ऐसे थ्योरेटिकली तो लगता है कि बहुत कम है, पर पूरी ग्लोबल सप्लाई का 1% वहां से निकलता है। और अगर ये 30 दिन के लिए बंद हो गया तो ऑयल प्राइसेस पे और एक मेजर इंपैक्ट आएगा, और पूरी दुनिया जो महंगाई और स्लो डाउन से निकल रही है, वो एक मेजर झटका उनको लग जाएगा। तो अभी इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है, लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। और देखो अगेन, इसमें
इट शोज कि जो हिपोक्रेसी है अमेरिका और नेटो नेशंस की, वो ये कह रहे हैं कि भाई बाकी सारी पाइपलाइंस बंद कर दो, पर जहां जहां से ऑयल कजाकिस्तान के थ्रू ऑयल जो यूरोप में आ रहा है वो आने दो। तो बाकी लोग जो क्या है, क्या वो ह्यूमंस नहीं है, क्या उनकी नीड्स नहीं है, क्या उनकी एनर्जी नीड्स नहीं है? तो ये सारी चीजें एक वेस्टर्न हेजेमोनिक और हिपोक्रेटिक माइंडसेट बताती है, जहां पे वो अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझते हैं जी। तो अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पर अगर ये पाइपलाइन बंद होती है तो ये एक मेजर इंपैक्ट डालेगी आपके ऑयल प्राइसेस पे, और पूरी दुनिया की ग्रोथ को एक और झटका लगेगा। होपफुली कोर्ट विल गिव देम टाइम कि इसको चलते चलते अपने प्रोसेसेस को मैनेज करें, ताकि हालांकि कुछ देर पहले भी इसमें डिसरप्शंस आई थी बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। तो ये सारी चीजें पूरी दुनिया के लिए बड़ी दुखद खबरें हैं। अब यूक्रेन वॉर जो हम समझते थे कि हफ्ते 10 दिन महीने में बंद हो जाएगा, 5 महीने हो गए हैं, वो कंटिन्यूटी में चल रही है जी। और इसने पूरी दुनिया की ग्रोथ को होस्टेज बना रखा है जी। और सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, जो इतने अपलिफ्टमेंट के प्रोग्राम पूरी दुनिया, पहले तो कोविड आ गया, अगेन उसकी सोर्स वो कंट्री था जो पूरी दुनिया पे, देखो जहां जहां पे जिन देशों ने लालच और दूसरे देशों के रिसोर्सेज पे कब्जा करने की कोशिश, उन्होंने पूरी दुनिया में अनर्थ ही फैलाया है और बेसिकली विनाश ही किया है जी। अगर आप बात कर लो कोविड की, उसने 2 साल तक सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों का किया जी। राइट, कितने लोग बीमार हुए, कितने लोग अपने रोजगार से चले गए जी। उसके बाद इस यूक्रेन वॉर ने अगेन अमीर देशों पे इसका इतना असर नहीं है जितना गरीब देशों पे हो रहा है, जितना गरीब लोगों पे उसके अंदर हो रहा है। तो मेरे को ये लगता है कि कुछ लोगों का लालच और उनका जो माइंडसेट है एक सुपीरियरिटी वाला बाकियों के ऊपर, वो पूरी दुनिया की वेल बीइंग को होस्टेज बना के रखे हुए हैं जी। लीडरों के लालच ने कई शहर बर्बाद कर दिए, कई देश बर्बाद कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए पर हो रहा है। इस तरह की ज़रूरी जानकारी पे डिस्कशन करते रहेंगे, तमाम करंट अफेयर्स पे बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए पंजाब टुडे।